Hello students, welcome to my lecture. Today's lecture is on binary search and we are going to learn everything related to binary search in this video. If you're liking this DSA series or the basic data structure series, please hit the subscribe button and do like to this video also. So let's start with the binary search. Binary search is nothing but a searching method that we use in arrays. But in case of binary search, there is one difference from linear search, which is you have to use the sorted array or sorted list only. Unlike linear search, which checks each element sequentially, binary search repeatedly divides the search interval in half. This method drastically reduces the number of comparisons needed, making it efficiently faster or larger for larger data sets. But there's one thing that you must use a sorted list if you want to use the binary search. Now, what is the core idea? First is dividing it into parts. So basically it works on divide and conquer approach of data structure. Now each time we are dividing the list into half, that doesn't mean कि we are deleting the elements of array. That means कि आपकी जो list है उसका half of the part would be under consideration and the remaining half would be out of the consideration. That is कि searching के लिए आप हर बार list को half करोगे just for point of interest की इतनी ही list में से element निकलेगा फिर और half कर दो फिर इतनी list में से element निकलेगा like that, right? Each time what we are doing, comparing the element to be searched or the target element with the middle element and keep on narrowing down the list. That is कि हर बार आप लिस्ट को नैरो डाउन करते हो बेस्ड ऑन सम कंपैरिजंस एंड आफ्टर डिवाइडिंग आप हर बार मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हो. ठीक है. Now we'll see what the algorithm looks like. So before moving to the algorithm, I am dividing the algorithm into four major steps. First one is find the middle element. Second is compare the target with the compare the target value with the मिडल एलिमेंट. देन एडजस्ट द रेंज अकॉर्डिंगली कि अगर आपका एलिमेंट फर्स्ट हाफ में है तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट को कंसीडर करोगे, अगर सेकंड हाफ ऑफ द लिस्ट में तो सेकंड हाफ को कंसीडर करोगे लाइक दैट. देन कम्स द रिपीट एंड कंक्लूड कि कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेप while the conditions are being met. So this is the formal theoretical way of writing the binary search जो आप एग्जाम में लिखोगे कि binary search का एल्गोरिदम आ गया. Here name of the array is data. LB and UB denotes the upper and the lower bound of the array कि 0 से n minus 1 या theoretically हम बोले तो 1 से n. Item is the item to be searched, right? LOC is a variable that we are gonna take. इस पूरे एल्गोरिदम में हम तीन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं, दैट इज बैक एंड मिड. अब ये तीन क्या है? किसी भी एरे का अगर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट 0 से हम शुरू करते हैं तो 0 आपका सेव होगा बिगिन के अंदर और n-1 तक लेते तो स्टार्टिंग में एल्गोरिदम के एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 और मिड क्या होगा बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाय 2. अब हम इसका हमेशा इंटीजर पार्ट लेंगे क्योंकि अगर आंसर इसका डेसिमल में आया तो हम क्या करते हैं सिर्फ इंटीजर पार्ट हैंडल करते हैं, बाकी को पॉइंट को छोड़ देते हैं, राइट? अब रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while begin is less than equal to end and data of mid is not equal to item. That means आप सेम ही स्टेप को चलाते रहोगे, उसके अंदर ये थर्ड और फोर्थ स्टेप को आप चलाते रहोगे. कब तक? जब तक आपकी लिस्ट को डिवाइड करते करते आपका ये कंडीशन आ जाए कि एंड बिगिन से ही छोटा हो गया. अगर ये कंडीशन आ गई तो मतलब आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है ट्रैवर्स करते हुए और आइटम मिली नहीं है तो हम बोल देंगे आइटम हैज नॉट बीन फाउंड. या दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपका डेटा ऑफ मिड आइटम के साथ इक्वल हो गया और द आइटम वाज नथिंग बट द टारगेट एलिमेंट दैट वी नीड टू सर्च, अगर उसके साथ सेम आ गया तब भी आप लूप रोक दोगे क्योंकि हमारे लूप का फंडा भी क्या है कि हमें क्या करना है कि यही चेक करना है कि आइटम मिल गई तो रोक दो. In for loop what we are doing was, one second guys, इन द फोर लूप व्हाट वी वर डूइंग वाज कि हम फोर लूप के अंदर क्या कर रहे थे, ब्रेक लगा रहे थे अगर आपका एलिमेंट मिल गया था लीनियर सर्च के अंदर. आई मीन लीनियर सर्च के अंदर अगर एलिमेंट मिल जाता तो हम फोर लूप के अंदर ब्रेक लगा देते. बट अब जब हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, वैसे बाइनरी सर्च भी आप फोर लूप के साथ लगा सकते हैं, ये नहीं कि आपको वाइल ही लगानी पड़ेगी. बट ओवर हेयर हम ब्रेक को ना यूज करके हमने वो एज कंडीशन ही ऊपर लिख दिया एल्गोरिथम के अंदर कि अगर डेटा ऑफ मिड के ऊपर आपको आइटम मिल गया तो वहीं पे आपको एल्गोरिथम रोक देना है.
अब ये जो तीन वेरिएबल है बिगिन, एंड और मिड, ये कोई एलिमेंट होल्ड नहीं करते, दीज आर होल्डिंग जस्ट द इंडेक्स वैल्यूज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि इनके अंदर तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट ओवरराइट हो गया तो क्या हुआ, वो कोडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, बैक एंड मिड, दीज आर थ्री इंटीजर वैल्यूज विच आर होल्डिंग नथिंग बट द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द एरे एंड नॉट द एलिमेंट्स। सो अब रिपीट स्टेप करने क्या है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि मिडल वाले एलिमेंट पे जो डाटा वो टारगेट इक्वल है, नहीं है, तो क्या करना है। तो दो स्टेप है, विच इज फर्स्ट इज कि आइदर तो आइटम छोटा होगा या बड़ा होगा डाटा ऑफ मिड से। अगर आपका आइटम छोटा है डाटा ऑफ मिड से, तो उसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट हाफ में होगा, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट है। सपोज करो आपकी लिस्ट है 1 2 3 4 5 अप टिल 9। अब नो एलिमेंट में से आपका मिडल क्या होगा, 4। ठीक है, 1 से लेके अगर 9 तक है, मिडल एलिमेंट क्या हो गया, 4। अब अगर मैं बोलूं कि आपको सर्च करना था 2, तो ऑब्वियसली 2 क्या है, स्मॉलर है आइटम टू बी सर्च्ड से। लेट्स से आइटम टू बी सर्च्ड वाज 2। तो आप मिडल से अगर आप कंपेयर करोगे 2 को, तो 2 छोटा है। तो मतलब क्या है कि जो 4th पे भी नहीं है, तो 4 से बड़ी आइटम्स में तो का ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एंड को उठा के क्या कर देंगे, मिड -1 तक ले आएंगे, क्योंकि मिडल एलिमेंट पे अगर नहीं है, वो तो उसके छोटे वाले में ही होगा। अगर एलिमेंट छोटा है तो उसकी छोटे वाली लिस्ट में ही होगा, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द लिस्ट में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एंड को उठा के मिड के एक कदम पहले, यानी कि मिड -1 पे रख देंगे। ऑन द अदर हैंड कि अगर मान लो आइटम टू बी सर्च्ड आपकी 8 है, और आपकी लिस्ट वही 1 से लेकर 9 तक है, आपका मिड है 4। तो हम क्या करेंगे, अब पता है कि 4 से बड़ा एलिमेंट, तो अगर 4 पे भी नहीं मिला और हमें पता है 4 से बड़ा है, तो 1 2 3 में तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर जो मिड वाले एलिमेंट से लेफ्ट साइड वाली लिस्ट को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिगिन को उठाएंगे और मिड +1 कर देंगे, क्योंकि उससे छोटी में भी नहीं है, मिडल पे भी नहीं है, तो मिडल +1 से लेके एंड तक अब हम ढूंढेंगे। Right, this is the way how you make the list shorter by moving the mid and end। ठीक है, ये करने के बाद आप फिर जो नई आपकी लिस्ट बनेगी, जो छोटी लिस्ट होगी, ओरिजिनल का हाफ होगा जैसे, उसके अंदर आप फिर दोबारा से क्या करोगे, मिड फाइंड आउट करोगे, दैट इज बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाई 2, कि दोनों में से जब बिग या एंड में से जो भी चेंज हुआ बिगिन या एंड में से, उसको फॉर्मूला में दोबारा लगाओ, मिड फाइंड आउट करो, और फिर वही चीज रिपीट करो कि मिड वाला जो एलिमेंट है वो आइटम से इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक करो छोटा है या बड़ा है। छोटा है या बड़ा है, अकॉर्डिंगली आपको बिगिन या एंड को मूव कर देना है, एंड कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट अंटिल योर आइटम हैज बीन फाउंड, या आपकी लिस्ट ही ट्रैवर्स होकर खत्म ना हो जाए। अब ये काम होने के बाद आपको अब चेक क्या करना है, प्रिंटिंग का कंसेप्ट आएगा कि कैसे प्रिंट करना है कि एलिमेंट मिल गया। अगर तो आपका आइटम इज इक्वल टू डाटा ऑफ मिड, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जब लूप खत्म हुई है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, आपका आइटम शुड बी इक्वल टू डाटा ऑफ मिड, तो हम क्या बोल देंगे कि सेट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। या दूसरा केस क्या हुआ होगा कि आपका वो अल्टीमेट मिला ही नहीं है, तो उस केस में आपका एलओसी क्या होगा, नल होगा, और हम बोल देंगे आइटम हैज नॉट बीन फाउंड। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज दिस इज अ एरे। अब इसके अंदर 7 एलिमेंट है, आइटम टू बी सर्च्ड इज 23 विच इज एट इंडेक्स नंबर 3। तो हम फर्स्ट आइट्रेशन देखते क्या है, आपका लो क्या होगा 0, हाई क्या होगा 6। एल बी या यू बी आप बोल लो, या बिगिन और एंड बोल लो, कोई भी वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो 0 + 6/2 क्या हो गया, 3। तो हम क्या चेक करेंगे कि इज, सपोज करो एरे का नाम है ए, इज ए ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट टू बी सर्च। यस, ए ऑफ मिड भी 23 है, आइटम टू बी सर्च भी क्या है, 23 है। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका आइटम मिल चुका है, और कहाँ पे मिल गया है, मिड वाली लोकेशन के ऊपर, बिकॉज मिड इज होल्डिंग व्हाट, इंडेक्स वैल्यू। देन एक और आइट्रेशन करते हैं कि अगर मान लो सेंटर वाला एलिमेंट नहीं है, कि सेम एरे है हमारे पास, बट अब एलिमेंट टू बी सर्च इज 50, राइट, बट एज इट इज क्लियर कि वो लिस्ट के अंदर नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो क्या होगा, स्टार्टिंग पे आपका मिड फाइंड आउट करते हैं, 0 + 6/2, आपका मिड आ गया 3। तो 3 के ऊपर क्या वैल्यू है, 23। तो अब हम चेक करेंगे, टारगेट 23 से छोटा है, इफ इट इज लेस देन 23, तो आपका एंड 6 से उठ के कहाँ आएगा, 2 पे आएगा, दैट इज मिड -1, राइट, क्योंकि आपका आइटम टू बी सर्च क्या है, छोटा है किससे, मिड से।
अब आइट्रेशन 2 के अंदर क्या होगा, लो आपका हो जाएगा 0, हाई हो जाएगा 2। अब लो और हाई की जगह आप बिगिन और एंड भी ले सकते हो, फंडा सेम ही है, वो सिर्फ नाम अलग अलग है। अब आप क्या बोल रहे हो कि लो आपका 0 है, हाई हो गया 2, और मिड क्या हो जाएगा 0 + 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1। तो अब आप देखोगे कि 1 वाली लोकेशन के ऊपर क्या है, 12 है। आप 12 को 23 से कंपेयर करोगे, अब 12 और को 23 से कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 23 इज ग्रेटर। और अगर ग्रेटर है तो आप क्या करते हो, मूव किसको करते हो, बिगिन को मूव करते हो, और बिगिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड +1। मिड +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, मिड वॉज 1, और ऐड कर दोगे 1 तो हो जाएगा 2। अब आइट्रेशन 3 में लो भी 2 है, हाई भी 2 है, और मिड भी क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। और मिड के ऊपर एलिमेंट क्या है, 18। अब आप 18 को कंपेयर करोगे आइटम टू पीसेस, दैट वाज 15। अब दैट मीन्स 15 छोटा है, तो आपका क्या होगा, आपका हाई चेंज होगा। अब हाई को हम उठा के क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। मिड -1 करा तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, लो हमारा 2 चल रहा था, हाई की वैल्यू 1 आ गई, तो ये क्या होगी, हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। लो हमेशा छोटा रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हाई से। तो दिस इज द केस व्हेन आइटम हैज नॉट बीन फाउंड, और लिस्ट पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है, नॉट एग्जैक्टली लाइक ट्रेवर्सिंग, बट आपने पूरी लिस्ट को प्रोसेस कर लिया बाय यूजिंग बाइनरी सर्च, और एलिमेंट आपका मिला नहीं, दिस इज द केस। अब आइटम मिलने वाला केस क्या होगा, कि आप हर बार क्या कर रहे हो, लो और हाई को दोनों में से किसी एक को चेंज करते जा रहे हो, मिड रिकैलकुलेट कर रहे हो, और टारगेट से कंपेयर कर रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टारगेट की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ए ऑफ मिड, तो वहां पे हम बोलेंगे आइटम हैज बीन फाउंड एट द लोकेशन मिड। नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। अब बेसिक सा फंडा क्या, हमने एक फंक्शन लिखा है बाइनरी सर्च का, जिसके अंदर हमने एरे को इनपुट करा, एरे का साइज इनपुट करा, और आइटम टू बी सर्च जिसको हमने टारगेट में सेव करा। स्टार्टिंग में लो की वैल्यू 0 कर दी, हाई की वैल्यू क्या कर दी, साइज -1, जो भी साइज होगा, राइट। और कंडीशन क्या रखी, लो लेस देन इक्वल टू हाई। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि मिड को कैलकुलेट करा, और चेक करा कि इज मिड इक्वल टू टारगेट। अगर तो मिल गया तो बोल देंगे कि टारगेट हैज बीन फाउंड, और रिटर्न कर देंगे क्या, मिड वाली वैल्यू, ताकि हम क्या करें कि मेन के अंदर बोल दे कि जो भी आपकी वैल्यू रिटर्न करेगी कि यहाँ पे आपका एलिमेंट पड़ा है, ठीक। उसके अलावा अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, आइदर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अगर लेस है तो लो को चेंज करो मिड +1, और अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हाई की वैल्यू मिड -1 हो जाएगी। अब ये लूप चलती जाएगी कब तक, जब तक आपकी पूरी लिस्ट प्रोसेस नहीं हो जाती एंड लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, या आपकी आइटम मिल जाए या ये कंडीशन फॉल्स ना हो, तब तक आपकी लूप चलती जाएगी। अब इस पूरे फंक्शन में से दो चीजें हैं जो आउटपुट हो रही है, आइदर आपका मिड रिटर्न हो रहा है अगर एलिमेंट मिल गया, या -1 रिटर्न हो रहा है जब आपकी ये लूप पूरी ट्रेवर्स हो चुकी होगी, राइट। तो आप मेन सेक्शन के अंदर सिर्फ ये लिखोगे कि इफ आइटम रिटर्न इज -1, तो आप बोल दोगे कि टारगेट नॉट फाउंड। अगर कोई और वैल्यू है तो आप बोल दोगे कि उस वैल्यू के ऊपर आपका एलिमेंट मिला भी, क्योंकि वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू मिड होगी। Now, in case of binary search, the complexity is log base n, log base 2n, and in linear search it is n, right, which is significantly faster than linear search. This logarithmic growth means that as the dataset grows, the number of operation increases much more slowly. The chart illustrates how binary search performance remains consistently efficient even with a massive increase in input size. Now, these are the basic applications of binary search. Now, before ending the lecture, I am giving you one basic idea, that is of what is the time complexity of binary search. In binary search, the time complexity is log base 2n. That is because each time we are doing what? We are dividing the list into two parts, right? We are doing what? We are dividing the list into two parts, and one is put into the consideration, the other half is ignored. So we say हर बार लिस्ट आपकी क्या हो रही है, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, राइट। क्योंकि आपका रिकैलकुलेट हो रहा है
आइदर बिगिन या आपका एंड, तो उससे होगा क्या, आपकी आइटम टू बी सर्च ढूंढने के लिए, बाइनरी सर्च को लगाने के लिए आपकी लिस्ट को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log base 2n। CSC के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एल्गोरिदम जिसके अंदर लिस्ट की डिवीजन हो रही है, तो एक फैक्टर हमेशा आएगा log base 2n, अगर लिस्ट 2 हिस्सों में बट रही है। That is the end of binary search. The complexity is log base 2n. We are keep on dividing the list. These were the takeaways from the video. And if you like this video, please hit the like button. If you want to share it with your friend, please do that also. And if you have any doubts, feel free to put that in the comment section. Thank you, students.